हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन in my sixth edition will be related with the case study. You know that in this year CBSE planning for the some question which are based on the purely case study, and you know that my topic is the inverse trigonometrical function, and in my last 5 lecture already we had discussed about identities problems, board problem, and all such kind of the questions. You know that very well, and I focused only the NCERT in board level problem especially, and some tricks in my last 5 videos. But in my sixth edition it is very important for you because this year CBSE introduced case study, and in 12th exam board there are the two question which are related with the 8 marks. That means the weightage of case study will be the 10% overall paper. So it is very important to all of you to understand the case study, how to solve the case study problem, and I promised you in my previous lecture, if you understand this topic properly you can easily make yourself a case number of the questions by the case study. So in this my video, I will explain the problem which are related with the case study. How many types of the question may be possible can come in your topic. It is completely based on the NCERT syllabus, but you should be knowledge about any function from inverse trigonometrical function to integration, application of integration. So overall we can introduce number of the topics in this chapter. This is not a purely inverse trigonometrical. This is the chapter which are related with the differentiation, the chapter related with the integration, application based problem. So let me start now. Again welcome to all of you. Math Google class आपका स्वागत है, and you can easily see that this is the inverse trigonometrical function class 12, and the main thing is for केस स्टडी. हम बहुत मेहनत से केस स्टडी के क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल सकें. सो स्टार्ट करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें. सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होना चाहिए. सो इट वुड बी वेरी इजी. यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस एंड वी कैन इजीली फाइंड देयर आंसर. वेरी इजी मेथड. सो लेट मी स्टार्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन. आपको ये याद रखना होगा, इन द क्वेश्चन पेपर आई एम गिविंग यू द वन फंक्शन fx equals to sin inverse x. Sin inverse x I am giving you the one function, and these are the some questions which are based on the sin inverse x. You have to give answers of the following question, but remember this topic is right now is related with the inverse trigonometrical complete, but sometime you will feel it is related with the calculus also. Okay, so let me start with question number first. My question number first is given that fx is equals to, मतलब sin inverse x जिसके बराबर होगा. दिस इज अ कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम. एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे इस तरह की काफी आइडेंटिटीज आपको दिखेंगी. बोर्ड के अंदर आपको 5 ऑप्शंस आएंगे, 4 आपको एनी चूज करना है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2, ईच वेटेज 4 मार्क्स. दैट मींस टोटल नंबर ऑफ द वेटेज विल बी द 8 मार्क्स. परसेंटेज इज द 10% ओवरऑल द पेपर. So these are the 5 different options. You can easily see that 5 different question. You can easily see that you have to attain any 4 if in case ये question exam में आता है तो ये इस टाइप का. Okay, so this time I am taking the one function sin inverse x. fx is equals to, you can see that आपको ये पता लगाना है इसमें से ऑप्शन A, ऑप्शन B या ऑप्शन C या ऑप्शन D सही है. So यहाँ हम रफ वर्क करेंगे इस एरिया में. sin inverse x equals to pi by 2 plus cos inverse x, pi by 2 minus sin inverse x, pi by 2 minus cos inverse x. I think the question is based on sin inverse x plus, my dear student, cos inverse x equals to pi by 2. You know that sin inverse x would be pi by 2 cos inverse x. So I think option number A is wrong, option number B is wrong totally. Option number C will be the correct. तो इसका जो सही आंसर मुझे लगता है जो होना चाहिए और जो होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी. So now the C is the correct answer. Okay, my dear students, we will discuss about the problem number 2 based on same function. You have remember
repeating again and again. I am talking about sin inverse x, that means sin inverse x. Now the question number second is related with function is the odd function, function is the even function, is a both function या none of these. अब आप सोचेंगे odd and even का concepts क्या है. So मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, if possible, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डायग्राम जरूर बनाएं. You know that sin inverse x का डायग्राम मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर करा था. This is the geometry of sin inverse x, which value is +1 to -1, maximum angle 90, minimum angle -90. Now you can see that odd function means the half portion is coming in the first quadrant and half in the third quadrant. जीरो के आगे जीरो के पीछे वैल्यू नॉन रिपीटिंग है, पर आप फंक्शंस की अगर वैल्यू देखें तो मैग्नीट्यूड के अंदर जो साइन का चेंज है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता इट वुड बी अ इवन फंक्शन. ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट मींस बोथ आप देखेंगे तो ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, इवन की कैटेगरी में आता है. इसका मतलब दोनों केस में y की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. This is the odd function, so option B will be wrong. Option A is right. So आप देखेंगे in the second problem odd is the correct answer. So by case study we solved the two different problems. Now we will discuss about the third problem. According to the third problem, it is given that if function is f minus x. f minus x का मतलब ये कि अगर हम इस x की जगह पे अगर माइनस साइन अप्लाई कर दें, then what the next, आगे क्या होगा, ये फंक्शन इनमें से किसके बराबर आना चाहिए. So let me start. Suppose function is given fx equals to sin inverse x. You can easily see that, but according to question it is given that suppose I am using minus sin inverse x. हमें क्या लगता है इसमें से क्या ऑप्शन आना चाहिए. So we all know that हमने by property ये सीखा है sin inverse minus x minus sin inverse x. इसका मतलब आप देखेंगे तो माइनस साइन और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं fx, क्योंकि वो fx को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करने पे जो आपको डेटा मिलेगा, जो एक्सप्रेशन मिलेगा, वो माइनस fx मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स. सो आप देखेंगे ऑप्शन ए बी सी एंड डी. ऑप्शन ए रिप्रेजेंट बाय माइनस fx, b is represented by fx, c you can easily see that it is represented by both the nature plus and minus, and now d is none of these. But you can easily see that this is the property based problem. वो इस प्रॉब्लम से आपसे प्रॉपर्टी पूछना चाहता है. सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. आप यहाँ पे लगाइएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना इजी है. अगर आप सारी आइडेंटिटीज क्लियर करते हैं, देखते जाते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं. नाउ द माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ. You can easily see that it is related with again a different question. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को. And according to the problem number 4, it is given that hx equals to, my dear students, hx equals to 2x 1 plus x square. Now f hx, इसका मतलब in place of x हमें ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है. इसको रफ में चेक करते हैं हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो देखिए आपको पूरा कंप्लीटली रफ वर्क यहाँ पे करना है. फंक्शन आपके पास में है sin इनवर्स x. दिस इज द sin इनवर्स, और आप जानते हैं x के प्लेस पर तो उसने हमें डेटा दिया है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर. sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, अगर आप प्रॉपर्टी देखें, आइडेंटिटी देखें, तो आप जानते हैं दिस आइडेंटिटी इज अ 2 tan इनवर्स x. आपको याद होगा जब हम आइडेंटिटीज 2 tan inverse x से रिलेटेड डिस्कस करते हैं तो हमें 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज मिलती हैं. इट इज वन ऑफ देम. सो आप देखेंगे sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, इसके इक्वल्स टू में जो आंसर आएगा वो आएगा 2 tan इनवर्स x. चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं. ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है. हमें ऑप्शन में दे रखा है tan इनवर्स x, नॉट पॉसिबल. इसके इक्वल्स टू में tan इनवर्स x नहीं मिल सकता. 2 tan इनवर्स x, यस ये सही है. pi by pi minus tan inverse x, that is wrong again. And now pi by 2 minus cot inverse x, again this is the wrong. So हम देखेंगे this is the correct answer, और इस बार आप देखेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा B. So आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम. Now the my fifth problem is related with maximum value of function. आपको ये पता लगाना है कि अगर आपके पास sin inverse x है
तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू आप चाहें तो बहुत इजीली समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, नहीं हो तो मैंने आपसे कहा था प्लीज फोकस करें डायग्राम पे। डायग्राम बहुत कुछ हमें सिखाता है। सो अगर हम एक बार और इसका डायग्राम देखें, सो डायग्राम इज लाइक दिस। आप देख सकते हैं इसका जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसा जाता है, और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड यू कैन इजीली सी दैट -1। सो मुझे लगता है इस पूरे ओवरऑल फंक्शन में जो सबसे बड़ी आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी +1, क्योंकि sin थीटा खुद एक फंक्शन मैक्सिमम +1 होता है और मिनिमम -1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू इज द +1। सो करेक्ट आंसर इसका जो हम निकालेंगे, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इज अ 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज अ -1 and now the option D is -2. So my dear student, option A is the correct answer. तो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर हमने 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए, फंक्शन हमारे पास सेम था, उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा, और ऑप्शन देखेंगे आपके सामने तो पांचों के पांचों ऑल द ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ आप नया पढ़ रहे हैं। यू आर जस्ट स्टडीइंग द ओनली वन फंक्शन, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन n number of the questions are the possible, and only these questions you have to solve by the properties, by the logic, by the concept, and you can easily give us all the answers. Okay, so चलिए हम इसके बाद next 5 questions और डिस्कस करते हैं। Okay, so now you can see that now another we have again 5 questions which are related with same function, sin inverse x. Now you can easily see that problem number 6, 7, 8, 9 and 10, these are the again different problems related with sin inverse x, and again we will solve each question by using the different properties. You can easily see that only I am taking the sin inverse x function and possible कितने questions हम डिजाइन कर सकते हैं, उसको कितना मेंशन कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज लगा के हम उन प्रॉब्लम्स को नए नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि मैं आपको जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो योर वे टू थिंक दिस क्वेश्चन इन एन नंबर ऑफ द वेरिएशंस, बिकॉज मे बी पॉसिबल कि आप खुद एक केस स्टडी के फॉर्म में, जब तक आप एक फंक्शन को केस स्टडी के फॉर्म में नहीं पढ़ना नहीं सीखेंगे, उसको समझना नहीं सीखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि हम जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ला सकते हैं लेकर आ जाए, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अगर आप ईच क्वेश्चन को एज ए केस स्टडी लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, अपने आप को ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कि आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट है या आपको किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकूं कि यू कैन design the question with yourself, you can make number of the question with yourself, only just I am giving the idea according to this question, you can easily frame the number of the question. So let me start with the problem number 6. The function again you can easily see that fx equals to sin inverse x, and now the question is related with the minimum value of function. आप बहुत easily समझ गए होंगे, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमम से रिलेटेड था, इस बार जो क्वेश्चन हमने देखा है वो क्वेश्चन है मिनिमम से रिलेटेड। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर उसने हमसे बोला है कि बताइए इसका मिनिमम फंक्शन क्या हो सकता है, आपको अच्छे से पता होगा। नाउ हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगेन दिस इज द ज्योमेट्री, मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज द +1। इसका जो मिनिमम आंसर होगा वो होगा -1, और मुझे लगता है इसका जो आंसर निकल के आएगा वो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इस फंक्शन जो मिनिमम वैल्यू देगा -90 पे वो वैल्यू आपको मिलेगी -1। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे एंगल पूछ लिया जाता है कि फाइंड द एंगल व्हिच मिनिमम वैल्यू इज द -1। सो यू नो दैट दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -90 में होती है। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 से। ये प्रॉब्लम नंबर 7 आप देखेंगे तो कैलकुलस से रिलेटेड है। एज आई टोल्ड यू कि द क्वेश्चन इज द sin इनवर्स x, टॉपिक इज द sin इनवर्स x, बट द एरिया ऑफ दिस फंक्शन इज डिपेंड टू द अदर टॉपिक्स आल्सो। Now this time I am asking the question, and the question is related with again sin inverse x, but derivative of function. And derivative of function, that means you should differentiate the function. Let me differentiate the function sin inverse x derivative if fx equals to sin inverse x. So अगर हम इसको differentiate करें, so now fx equals to sin inverse x, you can easily see that dy by dx is a 1 by under root 1 minus x square. This is the derivative of sin inverse x. You can easily see that
So this time अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर आप देखेंगे ऑप्शन 1 इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सेकंड अगेन इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन थर्ड विद माइनस साइन अगेन नॉट पॉसिबल. Yes, option D is the correct option. So the D will be correct answer. So question number 6, question number 7 you can easily see that. Now this time we will discuss about the problem number 8. Problem number 8 is given that is a incomplete problem. That means you can easily see that such kind of the question is called the option based problem. इसमें आपको ऑप्शन को देखकर पता लगाना पड़ता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. उसने पूछा है फंक्शन इज, दैट्स इट. उस फंक्शन के आगे क्वेश्चन मार्क है, बताइए इस फंक्शन में क्या है. अब आप देखेंगे दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द नॉन इंक्रीजिंग एंड नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. अगर आप ध्यान से देखें सो ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लगता है और आपको भी करेक्ट लगेगा, क्योंकि जब आप इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, आप इसे देखें, इसकी हमने कई बार अभी ज्योमेट्री ड्रॉ करी है लाइक दिस. जब आप माइनस से -1 से जब आप +1 की ओर मूव करते हैं तो आप देखेंगे आप फंक्शन का आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग फंक्शन जरूर करा होगा. मैंने आपसे पहले भी कहा है केस स्टडी में हम साइन इनवर्स जरूर लेते हैं, लेकिन हम इसमें कंप्लीट टॉपिक कवर करते हैं. आप देखेंगे साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम π/2 से आप देख सकते हैं -π/2 टू +π/2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. हमेशा लोएस्ट से हम मैक्सिमम की ओर देखते हैं. सो आप देखेंगे इसका आंसर जो निकल के आएगा, so the correct answer you can easily see that the answer will be option A and इसका सही आंसर है increasing function. चलिए now we start with the next problem, problem number 9. again the topic is this फंक्शन. आप देख सकते हैं सेम है टॉपिक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन यहाँ आपने देखा मैंने आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा. नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा सरप्राइज होगा आपके लिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दे रखा है, उसमें पूछा गया है, देखिए टेंजेंट. टेंजेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय x माय स्टूडेंट्स. टेंजेंट का मतलब जब हम 12th क्लास में आते हैं, 11th क्लास में इसको हम ग्रेडियंट बोलते थे जब हम स्ट्रेट लाइन स्टडी करते थे. इस बार मैंने इसको यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द डिवाइड बाय x मतलब डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट. आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट. आप डिवाइड बाय x फाइंड कीजिए, टेंजेंट निकालिए ऑफ दिस फंक्शन, और उसमें x जो है वो है π/2. तो एक काम करते हैं, आपको टेंजेंट की वैल्यू पूछिए. सो आपके सामने ऑलरेडी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हुआ है. हम x के प्लेस पर जब डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हम डेटा करेंगे यहाँ पे 1/2. एक बात ध्यान रखें, आप स्टार्टिंग में 1/2 सब्स्टिट्यूट ना करें, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. उसने आपसे डेरिवेटिव पूछा है, देन टेंजेंट की वैल्यू 1/2 पे पूछी है. दैट मींस आफ्टर डिफरेंशिएशन you will substitute 1/2 in place of x. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. यहां से हमने निकाला डिवाइड बाय dx डिवाइडेड बाय √1 - 1/2 होल स्क्वायर. जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने पे हमें मिल जाएगा 1/√1/4. एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा तो आप देख सकते हैं आपको न्यूमरेटर में चला जाएगा 2, डिनोमिनेटर हो जाएगा अपॉन में √3. इस पूरे एक्सप्रेशन को आप जब सॉल्व करते हैं तो कंप्लीट आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ऑप्शंस हमें मिलेगा, ऑप्शन देखने में मिलता है 2/√3 और ऑप्शन बी इज करेक्ट. यू कैन इजीली सी दैट. सो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आंसर होगा इसका बी, एंड राइट आंसर ऑफ दिस केस स्टडी इज बी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ this time we have another different problem again related with the calculus. आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है उसने. दैट मींस द कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल. उसमें आपसे पूछा गया है आप वो टेंजेंट निकाल के बताइए जहां पे थीटा π/4 होता है. इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा. आप जानते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, और कुछ यहां पे हम मान लेते हैं कि एंगल 45 डिग्री आएगा, और यहाँ पे हमें इसका थीटा जो tan थीटा है या डिवाइड बाय dx वो हमें पता लगाना है और हमें इक्वेशन निकालना है. लेकिन आप जानते हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, आपके पास होना चाहिए y - y1 स्लोप एंड x माइनस का x1, और आप जानते हैं m का मतलब होता है डिवाइड बाय dx. इसका मतलब आपके पास डिवाइड बाय dx भी होना चाहिए.
और आपके पास कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेट्स के आप कभी भी इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे देखिए केस स्टडी से रिलेटेड टेंजेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बोला गया कि इक्वेशन निकालिए टेंजेंट की। हो सकता है वो आपसे नॉर्मल का इक्वेशन भी पूछ सकता था। सो इट मे बी डिपेंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है नॉर्मल से रिलेटेड भी हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें फाइंड करना है टेंजेंट का इक्वेशन। एंगल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है थीटा, और थीटा हमें दे रखा है π/4। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर π/4 है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए इसको रफ में हम सॉल्व कर लेते हैं। सो sin इनवर्स x इक्वल्स टू π/4। आप जानते हैं अगर वैल्यू यहाँ पे अगर इस फॉर्म में एक्सप्लेन करें इसका मतलब ये हो जाता है sin π/4। इसका मतलब the meaning of this is that it would be 1/√2। That means you can easily understand that the coordinate of this point where tangent touch to the graph and the value is the value of x, and value of x is a 1/√2 my dear students, and theta you know that π/4। so आपके पास में पॉइंट्स तो मिल गए, y1 और x1 का डेटा आपके पास में है π/4 and 1/√2, बट यू नीड टू डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको डिफरेंशिएट, आपको टेंजेंट की वैल्यू निकालना है इस पॉइंट पे। तो चलिए हम यहां से टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, तो इस फंक्शन को हमने देखिए एक बार और डिफरेंशिएट करा, मैं पहले भी कर चुका था। सो fx इक्वल्स टू sin इनवर्स x, इस fx को मैं dy/dx मेंशन कर सकता हूं। इसका डेरिवेटिव आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं इस टेंजेंट की वैल्यू आपको निकालना है वेयर द वैल्यू ऑफ x इज 1/√2 दिस टाइम। नाउ यू विल बी सब्स्टिट्यूट 1/√2 ओवर हियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय √1/√2। आप सब क्लास 12th में 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। यू कैन इजीली सी दैट 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, कैसे भी समझिए इसको। ओवरऑल जब आप इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहां से, तो यहां से मिलेगा 2, आप जाएंगे तो ऊपर मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी √2। आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि आपने जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के लिए आपने इस फंक्शन का x का डेटा है हमने सब्स्टिट्यूट करा, x की जगह आपने 1/√2 रखा, तो आपने देखा इस पूरे डिवाइडेड इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो हमें मिली √2। चलिए अब यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जहां पे हम n के प्लेस पर जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो होगा √2। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये पोर्शन मैं रब नहीं करता हूं, आई थिंक इतने में सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करते हैं हम यहां से। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है y minus y1, दैट मींस y minus y1, y1 का मतलब π/4 आप देख सकते हैं, इक्वल्स टू m, m का मतलब dy/dx, वो मिला आपको √2 इन द ब्रैकेट x minus 1/√2। आप चेक कर सकते हैं, ये आपको डेटा मिला यहां से। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सो आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 4y minus π/4 √2x माइनस का वाला आप देखेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसका आगे, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू करा तो आपको यहां से मिला 4y minus π इक्वल्स टू 4√2x माइनस का 4। ओवरऑल आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को और सिंपल करते हैं, y को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4√2x minus 4y, आप देखेंगे तो कांस्टेंट हर जगह बाहर दे रखा है, हम भी बाहर कर देते हैं, इक्वल्स टू 4 उधर चला जाएगा, 4 माइनस का आप देखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 माइनस पाई। ऑप्शन नंबर अगर मैं 1 चेक करता हूं वो करेक्ट नहीं है, सेकंड चेक करता हूं वो करेक्ट नहीं है, थर्ड चेक करता हूं वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा इस बार वो होगा नन ऑफ दीस। ये क्वेश्चन नन ऑफ दीस का पर्पस यही था कि आप कभी भी ये ना समझें कि हमेशा इक्वेशंस फॉर्म में दे सकते हैं, आपको वो नन ऑफ दीस में भी ऑप्शन दे सकते हैं। चेक करना, वो आपसे चेक करेंगे कि आप इसका किस तरह से इक्वेशन निकालते हैं। सो आपने देखा जो आप आंसर निकल के आएगा वो आंसर जो होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नन ऑफ दीस अप्लाई करेंगे दिस टाइम। और आपने देखा उसने ऑप्शंस नहीं गिवन दे रखा था, जिसका करेक्ट ऑप्शन आंसर निकल के आया वो आप देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिलेगी दिस वन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड द 5 क्वेश्चन आपने देखा कैसे हमने इन प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करा।
चलिए इन रब करके हम फिर से दोबारा से डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। So my dear students, the problem is same, fx tan inverse 2x 1 minus x square। सेम प्रॉब्लम के कहने का मतलब साइन इनवर्स था, यहाँ tan इनवर्स है, लगभग क्वेश्चन उसी के आसपास मैंने फ्रेम करे हैं। जितना इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम जितना क्लोज क्वेश्चंस बना सकते थे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए निकाल सकते थे, मैंने प्रयास करा इस वीडियो के अंदर। नाउ अगेन वी आर टेकिंग दिस टाइम tan इनवर्स 2x 1 minus x square। This is the identity, you know that one by one we will discuss regarding this identity, and there are fifth different parts, you can easily see that. So now I am taking the first part and given that function is equals to, again the question is related with the identity, I think so that because the option is tan inverse x, 2 tan inverse x, cot inverse x and cos inverse 1 plus x square and 1 minus x square। So चलिए देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, मैं इसको माइनस और प्लस कर देता हूं। चलिए सो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। tan inverse 2x 1 minus x square, this is the property is a 2 tan inverse x, this is the formula, this is the identity of 2 tan inverse x। आप जानते हैं 2 tan inverse x is a 2x 1 minus x square। so now option A, option B, option C and option D अगर हम ध्यान से देखें, so option A is not possible, option C is not possible, again cos inverse not possible, but आप जब option B देखते हैं, so 2 tan inverse x and 2 tan inverse x is a property of this, so option B will be the correct। so इसका जो आंसर आएगा वो आएगा B। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड। आपको दे रखा है fx इज इक्वल्स टू, मतलब एक फंक्शन आपको दे रखा है और आपको पता लगाना है ये फंक्शन किसके बराबर है। अगेन हम देखें यहाँ पे तो क्या आंसर निकल के आता है। so tan inverse 2x 1 minus x square, ये आपके सामने ऑप्शन था। चलिए इसको चेक करते हैं, इसमें हमें क्या वैल्यू मिलती है। ये था नन ऑफ दीज, ये मैंने बेस निकाला था नन ऑफ दीज। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 2 tan inverse x, 2 tan inverse x की प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो पाई बाय 2 माइनस प्लस का cot inverse x पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहां देखते हैं पाई बाय 2 माइनस cot inverse x, वो पॉसिबल नहीं क्योंकि यहां tan inverse अकेला होना चाहिए था जो नहीं है। नाउ दिस टाइम यू विल सी दैट पाई बाय 2 प्लस sin inverse x, वो पॉसिबल नहीं है। और आप देखेंगे तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम इन तीनों प्रॉपर्टी को इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमें यहां से मिलता है 2 tan inverse x, और अगर हम इसमें 90 की प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो 2 बाहर करने के बाद जो हमें डेटा मिलता वो हमें डेटा मिलता पाई माइनस cot इन पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, और अगर हम 2 से इसका मल्टीप्लाई करते तो देखिए 2 पाई बाय 2। हो सकता है मैं आपके सामने ये ऑप्शन भी लिख देता, अगर मैं आपके सामने नन ऑफ दीस की जगह ये ऑप्शन लिखता तो देखिए पाई माइनस का 2 cot इनवर्स x आपके लिए ये एक नए ऑप्शंस को क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पाई माइनस 2 cot इनवर्स x, इसका आंसर नन ऑफ दीस के प्लेस पर आ सकता है। अगर हम इसके ऑप्शन में डी को हटा दें तो इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टी बेस्ड थी वो थी 90 से रिलेटेड प्रॉपर्टी, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यू ऑल नो दैट पाई बाय 2 होता है, और ये सभी प्रॉपर्टी पाई बाय 2 से रिलेटेड थी। अगर वही कांसेप्ट में यहाँ पे अप्लाई करता तो आप देख सकते हैं नन ऑफ दीस की जगह एक ऑप्शन और पॉसिबल हो सकता था पाई माइनस 2 cot इनवर्स x। तो अगर आप इसे नोटिस जरूर करें कि आपको एग्जैक्ट जो डेटा है वो ऑप्शंस को देख के जो समझ में आ रहा है पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में ये इसका आंसर पॉसिबल था, लेकिन यहाँ गिवन नहीं दे रखा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज भी किया, आपने देखा होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका थर्ड केस सॉल्व करते हैं। आपको फिर से वही दे रखा है फंक्शन इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल्स टू में आपको बताना है क्या पॉसिबल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये आइडेंटिटी मैंने अपने सेकंड वीडियो में ड्राइव की थी, आपको अच्छे से याद होगा। देखिएगा ध्यान से, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज को लिखने की आदत डालें, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस से कभी भी आप इन प्रॉपर्टीज को नहीं लर्न कर पाएंगे। आप विद इन 3-4 डेज में फिर से वॉश आउट हो जाएगी। कोशिश करें, ड्राइव करें, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, सारी प्रॉपर्टी ड्राइव हो जाती है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमें जो दे रखा है तो ये था, इसका जो आंसर था वो आंसर है डी। आपने देखा पाई माइनस 2 cot इनवर्स x अभी मैं निकाल के लाया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।
ये फंक्शन इक्वल होगा, मुझे ऐसा लगता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो प्रॉपर्टी है वो है 2 tan इनवर्स x, और आप अच्छे से जानते हैं ऑप्शन में जो आपको दे रखा है sin इनवर्स, मतलब sin इनवर्स से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी पॉसिबल है, तो 2 tan इनवर्स x होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये प्रॉपर्टियां आपको बताई थी, दोबारा से हम देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन ए आप देखेंगे तो 2 मिसिंग है, जबकि ओवरऑल फंक्शन मैच करता है। ऑप्शन बी माइनस के कारण मैच नहीं करेगा, डिनोमिनेटर गलती ना करें, ध्यान से फंक्शन को देख के यूज करें। थर्ड वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लगता है, जो बिल्कुल इससे मैच करेगा। नन ऑफ दिस की कोई चांसेस नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर निकल के आएगा, जो आंसर होगा वो आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। फिर उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर है, अगला देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे। अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, फंक्शन इज इक्वल टू, अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करें तो मैंने सारे क्वेश्चन इक्वल्स टू पे बेस्ड लिए हैं। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने मैं निकाल सकता था कि इसके इक्वल्स टू में क्या पॉसिबल है वो सभी आपके सामने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखेंगे नाउ, तो माय नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद यू कैन इजीली सी दैट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Now the next problem is function is equals to 2 tan inverse x equals to sin inverse 2x 1 plus x square। आपको याद होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी कौन होती है, cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, 1 minus x square divided by 1 plus x square cos inverse x के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन ए चेक करेंगे पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी मुझे करेक्ट लगता है जो मैच कर रहा है प्रॉपर्टी से। ऑप्शन डी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 मेंशन कर रखा है, दिस इज द 2, वैसे भी वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस आ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें, सो माय डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, इसका जो आंसर होगा वो सी। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगेन आप देखेंगे तो मेरे प्रीवियस साइन इनवर्स के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में लगभग सेम पैटर्न की प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूं। मेरा पर्पस ये है कि अगर आप इसके प्लेस पर कॉट ले लें, कॉस ले लें इनवर्स के फॉर्म में, सेक ले लें, आप कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल बना सकते हैं। आप इन क्वेश्चन से आइडिया ले सकते हैं कि फ्रेमिंग कैसे पॉसिबल होता है। चलिए तो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx इज गिवन, हमें डिफरेंशिएशन पूछा है, बट माय डियर स्टूडेंट्स it is very difficult to differentiate this function because you know that this is the chain rule based problem। क्या इसका कोई सरल तरीका हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि बिना चेन रूल के आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिए आप इसको बिना चेन रूल के सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है fx इक्वल्स टू, जब मैं आपको डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा जिसमें आप बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आंसर गलत नहीं होता है, मार्किंग भी आपको पूरी मिलेगी, लेकिन तरीका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, आप जल्दी उसको क्रैक कर सकते हैं, टाइम सेविंग कर सकते हैं। आपको देखिए अगर tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, यू ऑल नो दैट विदाउट चेन रूल ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके प्लेस पर 2 tan इनवर्स x लिखते हैं तो आप यू कैन इजीली सी दैट सेम फंक्शन will be converted into 2 tan inverse x my dear student, and now 2 tan inverse x का डेरिवेटिव कंपैरेटिवली इससे बहुत आसान होता है, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। now divide by dx आप देखेंगे तो 2 into 1 upon 1 plus x square, so now you can easily see that the derivative of function is 2 tan inverse x सेम होगा। अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगाने के बाद, जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे एंड में आप यहीं पहुंचेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा, द फाइनल आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ऑप्शन में चेक करते हैं ऑप्शन क्या सही हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मुझे लगता है आप चेक कर सकते हैं, ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल नहीं है, 2 मिसिंग है, थर्ड में -1 है, नॉट पॉसिबल, फोर्थ अगेन -2। सो करेक्ट आंसर आप देखिए इसका जो लगेगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 एंड 5 आपने देखा, हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करें। इसी फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट हम अदर प्रॉब्लम फिर से दोबारा से डिस्कस करते हैं।
So problem number 6 is given that the maximum value of function, आपको फाइंड करना है इसका सबसे मैक्सिमम आंसर। इससे पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं इसके ग्राफ पे। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ, यू नो दैट दिस इज द पाई बाय 2 वेयर फंक्शन टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड अगेन दिस इज द माइनस इंफिनिटी एंड माइनस पाई बाय 2 एंड you can easily see that इस फंक्शन में आप कभी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते और ना ही इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है। क्वेश्चन जो बेस जो दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर मैं आपसे कहूं तो -1 से +1 नॉट पॉसिबल, वो इसके बिटवीन हो सकता है, सबसेट हो सकता है पर सेट पॉसिबल नहीं है। बी इज नॉट आंसर, सी इज नॉट पॉसिबल, आंसर विल बी द करेक्ट। इसका सही आंसर जो आप देखेंगे इसका आंसर होगा देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, यू नो दैट। दैट्स द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। जो होगा वो होगा डी। नाउ अगेन द क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कनेक्टिविटी आपको दिखाई देगी। मैंने आपसे सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा पूछा था, मैं चाहता तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता था। अगर हम इसी का एक पार्ट और आप चाहें तो अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। यू कैन इजीली सी दैट tan इनवर्स का कोई मिनिमम नहीं होता है, जैसे कोई मैक्सिमा नहीं होता है वैसे कोई मिनिमा नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैक्सिमम इज नॉट पॉसिबल, मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, बट यस फंक्शन आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। तो हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे अभी यहाँ पर, मैं ऐड करूंगा इस क्वेश्चन में इसके बाद में। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आप देखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमसे पूछा गया फंक्शन इज ऑड है इवन है, दोनों पॉसिबिलिटी है या नन ऑफ दीज है। आप ध्यान से देखिए जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट है उतना ही पार्ट आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा, लेकिन साइन माइनस के हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड में साइन का डिफरेंस आएगा। सेकंड थिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट नॉन रिपीटिंग वैल्यू आप देख सकते हैं। हमसे पूछा गया क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, क्वेश्चन विल बी नेगेटिव। जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपको नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव फॉर्म में। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट 0 से आगे 0 से पीछे, यू कैन इजीली सी दैट। सो जो ऑप्शन आपके लिए आएगा ऑप्शन इवन पॉसिबल नहीं है। इवन में y कभी नेगेटिव नहीं आता, यहां देखेंगे y थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों केस पॉसिबल नहीं होंगे। ऑड फंक्शन इज पॉसिबल, नन ऑफ दिस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे बी। एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुझे एक क्वेश्चन और क्लिक कर रहा है कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक नया फॉर्म दे सकते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता, आप देख सकते हैं फंक्शन इज, अगर मैं आपको यहां से अटेंडम बोलूं फंक्शन इज, और ऑप्शन बेस्ड प्रॉब्लम है इसलिए आपको नहीं पता लगना ऑप्शन क्या मेंशन करूंगा, और उसमें मैं सपोज ऑप्शन ए लिखता हूं डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन बी इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन सी में आपको देता हूं neither increasing and nor decreasing, या थर्ड ऑप्शन देखने के बाद डी में मैं आपसे बोला कुछ भी नहीं पॉसिबल है, none of these। now you can see that function is, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से, सॉरी माय मिस्टेक, थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर मूव कर रहा है। फंक्शन लगातार मूव करेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस 90 से प्लस 90, एंगल भी इंक्रीज हो रहे हैं, वैल्यू भी आप देखेंगे लगातार इंक्रीज हो रही है। दैट मींस ये जो फंक्शन कैटेगरी होगी वो आना चाहिए इंक्रीजिंग। सो आपने देखा, मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन बना दिया। यहां से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत पॉसिबल है बना सकते थे। मैं आपसे कोई सी भी टेंजेंट की वैल्यू यहां से पूछ सकता था, मैं आपसे डिवाइडेड प्लस उस पर एक एंगल या वैल्यू रख के मैं आपसे पूछ सकता था यहाँ इसका डेटा क्या आना चाहिए। आप देखेंगे सो जब हम इसमें कैलकुलस अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है। सो दिस टाइम आपने देखा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बनाया। चलिए हम आगे और इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो केस स्टडी से रिलेटेड होगा। Now you can see that I am taking the another question and the question again related with the tan inverse x। आप देख सकते हैं मैंने इस बार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, this question is again the tan inverse x, but कंपोजिशन आप देखेंगे √1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बार आप प्रॉब्लम देखेंगे तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। देखते हैं आप कितना क्लोजली इसका आंसर कर सकते हैं।
केस स्टडी में आप देखेंगे तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो यूजुअली आपने देखे हुए हैं, आपने इजीली सॉल्व किए हुए हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, तभी हम कोई केस स्टडी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस केस स्टडी के अंदर इतने सारे ऑप्शन से अप्लाई करे हैं, देखते हैं हम कितना क्लोज इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो मुझे दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो इन 5 क्वेश्चन में से हम ले रहे हैं पहला नंबर का क्वेश्चन नंबर में हमें दे रखा है सिंपलीफाई द fx। आप इस फंक्शन को सिंपलीफाई करें। सुटेबली आप क्या यूज करेंगे इसको सिंपलीफाई करने के लिए, ये इसका मीनिंग है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन इन प्लेस ऑफ x, क्या आप सब्स्टिट्यूट करना पसंद करेंगे? ऑप्शंस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन मुझे लगता है इसका a सही है, लेकिन हम a बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन cos x रखता हूँ जो गलत हो जाएगा, बिकॉज x के प्लेस पर हम कभी भी cos x नहीं रख सकते। इसका मतलब यहाँ x के रिस्पेक्ट में आपको कोई डिफरेंट फंक्शन लेना था जो कि गलत हो गया, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम डिस्कस करें x स्क्वायर, कुछ नहीं होगा, आपका क्वेश्चन x स्क्वायर आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि x के प्लेस पर आप अगेन x स्क्वायर रख रहे हैं, अगेन दिस इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट देखिए फर्स्ट ऑप्शन जब आप देखते हैं तो आपको मिलता है 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। आपको अच्छे से पता है 1 माइनस cos थीटा देगा आपको 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये देगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो जब आपको जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा थीटा बाय 2। दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। सो आप इसको सिंपलीफाई करने के लिए जो सुटेबल ऑप्शन यूज करेंगे वो आपके लिए होगा ऑप्शन ए, दिस इज द फर्स्ट। चलिए डिस्कस करते हैं हम सेकंड के लिए। सेकंड में आपको दे रखा है बाय व्हिच आइडेंटिटी फंक्शन विल बी द सिंपलीफाई। आप क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, कहने का मतलब ये जब आप इसके अंदर फंक्शन यूज कर लेंगे। देखिए मैंने इसको जान करके आधा करा था, इसको मैं अप्लाई करूंगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं यहां से आपको मिलेगा tan इनवर्स। आगे सॉल्व करेंगे तो पूरा कंप्लीटली सिंपलीफाई करने पे आपको ये एक एक्सप्रेशन मिलेगा। आप अच्छे से जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू में थीटा बाय 2। ये आइडेंटिटी आपको जब सिखाई जाती है तो ऐसा सिखाया जाता है, tan इनवर्स tan थीटा आप लिखते हैं थीटा। तो देखिए यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए having the blue pen, चलिए ब्लैक से कर लेते हैं। सो ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी वो आपको मिलेगी tan थीटा tan इनवर्स x। तो मुझे लगता है फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 मतलब आपको मिलेगा tan थीटा। सो फॉर्मूला जो अप्लाई किया जाएगा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप देखेंगे tan इनवर्स बाहर आना चाहिए, यहाँ पे tan है, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा विजिबिलिटी का भी खेल होता है, कई बार वो एक्सप्रेशन ऐसा मेंशन करते हैं कि आप बच्चा कंफ्यूज हो जाए। नाउ आप देखेंगे जब दिस tan इनवर्स tan थीटा, और जब आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे तो अगेन यहाँ पे उन्होंने x अप्लाई कर रखा है। सही ऑप्शन मुझे मिल लगता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सी। तो चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर निकल के आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए, आपको थर्ड प्रॉब्लम दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया हुआ है मैंने। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ से थीटा बाय 2। आपको पता होगा इसको सॉल्व करने के लिए हमने x इक्वल्स टू cos थीटा यूज करा था ऑप्शन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड। जो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मैं वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू cos थीटा। हम अच्छे से जानते हैं जब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा cos इनवर्स x। सब आप इसको ओवरऑल यहाँ पे रखेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और फाइनल आंसर आपको मिला यहाँ से cos इनवर्स x अपॉन 2। ये आपके लिए सिंपलीफाइड फंक्शन था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से डेटा मिलेगा। आपसे पूछा गया है इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, आप उसको डिफरेंशिएट करें या इसको डिफरेंशिएट करें। आंसर दोनों के सेम आते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला था जो सरल तरीका होगा मैं आपको सिखाऊंगा। सरल तरीका क्या है और इसका इजी तरीका है, इसको चेन रूल लगा के सॉल्व करने से बेस्ट है आप सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सॉल्व करें। इसका आंसर और इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों से मिलने वाली टेंजेंट्स इक्वल होंगी। सो आप देखिए सबसे आसान होगा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना।
cos इनवर्स x का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिवाइड बाय dx आपको मिलेगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। आप जानते हैं 2 से इंटू हो रहा है, आप भी कर दीजिए। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो आप ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसके मैच नहीं करते हैं। इसका मतलब आप देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन हम लगाएंगे, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आपने देखा मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है, फोर्थ प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होगा। वैल्यू ऑफ टेंजेंट x इक्वल्स टू 1/2। आप वो टेंजेंट की वैल्यू निकालिए where the value is 1/2। इसका मतलब आपके सामने जो ये फंक्शन है ये टेंजेंट के फॉर्म में है, डिवाइड बाय dx से। आप क्वेश्चन की कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। Find the derivative of function divided by dx where the value is x equals to 1/2। It is given that you can easily see that if you substitute the value 1/2 here, तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं 1/2। जैसे हमने यहाँ पे 1/2 रखा, सो देखिए हमको यहाँ से मिलेगा -1 2 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये मिला, सॉल्व करेंगे ओवरऑल तो 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 2 अंडर रूट हमको मिला 3। नाउ द वैल्यू विल बी -1/√3। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड नाउ ऑप्शन डी। यू कैन इजीली चेक इट, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इसका जो सही आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट इट वुड बी ऑप्शन फोर्थ। Now again the question is given that the value of theta, value of theta find करें, क्या होगा अगर x के प्लेस पर 1/2 आ जाए। That means आप क्वेश्चन पे देखें तो आप यहीं पर आ जाइए, इसी पॉइंट पर। एक ही क्वेश्चन से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। आपने थीटा सपोज करा था cos इनवर्स x, और नाउ इन दिस टाइम आपसे पूछा गया अगर x 1/2 होता तो बताइए यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा निकाल के दिखाइए। तो चलिए हम यहाँ से थीटा निकालते हैं। मैं इतना पोर्शन ड्रॉप कर देता हूं। सो सपोज आई एम सॉल्व। आप देख सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन सेम है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वही एक्सप्रेशन आता है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये पूरा एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम वैल्यू रखते हैं। हमसे बोला गया है अगर x की जगह पे 1/2 होता तो क्या होता। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आपने सॉल्व करा तो आपको यहाँ से मिला है cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन। और आप जानते हैं tan इनवर्स x इक्वल्स टू में एंगल होता है, इसका मतलब ये आप एंगल ही है, आप ध्यान से देख सकते हैं। x के प्लेस पर आप रखिए 1/2। sin cos इनवर्स 1/2 का मतलब होता है cos इनवर्स 1/2 किस एंगल को वैल्यू को देगा तो 60 डिग्री पे देता है। दैट मींस जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे cos इनवर्स 1/2 याद रखिए, आई रिपीट अगेन, इस पूरे फंक्शन के इक्वल टू ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपसे पूछा गया इस फंक्शन का एंगल क्या होना चाहिए। आप इसी क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। सो जब आप यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका मतलब 1/2 यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, आपने 10th क्लास में वैल्यू सीखी होगी, ये वैल्यू होती है 5/3 मतलब 60 डिग्री अपॉन 2। आप जानते हैं जब आप 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 30। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा π/6। ऑप्शन में चेक करते हैं इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है π/6 जो मैच करता है। ऑप्शन बी माइनस का पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे तो वो ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए। सो आपने देखा आज के इस वीडियो में मेरा पर्पस था हम इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व करे। आई होप सो आपने शायद कुछ सीखा होगा कैसे फ्रेमिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हेन यू आर स्टडीइंग, व्हेन यू आर solving such kind of the question which are related with the inverse. You just keep one thing in your mind, just solve the problem with respect to the case study. When you think that any problem with respect to case study, number of the questions are possible, you can easily make, no need to any books and other things also. So ये मेरा प्रयास था कि मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दूं, थोड़ा सा आइडिया बताऊं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है, पसंद आए पसंद करें, ना पसंद आए ना पसंद करें, दोनों चॉइस आपके पास में है। ना पसंद आए तो उसका रीजन लिखिए कि इसको और कितना हम और इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि आपकी ना पसंद को हम पसंद में कन्वर्ट कर सकें। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, क्वेश्चंस हमको सिलेक्ट करना पड़ते हैं, लेकिन आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं।
अगर आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, पॉजिटिव वे में गाइड करेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट बताएं, कुछ कमी है तो जरूर बताएं। हम तब तक आपसे अपनी कमियां पूछेंगे जब तक हम वीडियो आपके लेवल तक परफेक्टली आपको ना पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसली सुना। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग करने का तरीका आपने सीखा होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा केस स्टडी का। नंबर ऑफ केस स्टडीज में आपको बताऊंगा इन्वर्स से रिलेटेड कितनी पॉसिबल है। देन उसके बाद में मेरा जो अगला सीरीज आएगा, उस अगले सीरीज में केस स्टडी के अलावा मैं जो नया टॉपिक डिस्कस करूंगा वो करूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वो आप जरूर देखें, देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।